Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today I will discuss with you the questions of the topic states of matter which I have taken from the past papers. These are the MCQ questions in the worksheet. Okay, let's discuss question number one. In the question number one, a scientist heats a sample of a liquid and he gets this graph. So we can, you know, divide this graph into three segments. The first segment is from uh, W to X. I will label it 1. And the second segment is X to Y. And the third segment is Y to Z. In the first segment, the liquid is being heated and the temperature is rising. Whereas in the second segment, there is a change of state. Basically, there is a transformation of liquid to a gas. In the third, all of the liquid has changed into gas, so there will be gas molecules. सारे के सारे gas molecules होंगे, so temperature will again keep on rising. अब 2 में basically क्या हो रहा है? Due to change of state, temperature remains constant. Let's look at the provided statements. Okay, which statements are correct? Between points W and X, the temperature increases and the particles move faster. Yes, that is true. When the liquid is being heated, so क्या होगा? The liquids will have more kinetic energy, due to which they will move faster. Yes, that is true. The first statement is absolutely correct. Okay, I will mark this statement as true. Okay. Second statement, between points X and Y, there is no change in temperature because energy is needed to change a liquid into a gas. Yes, that is true because there is a change of state and there is no change in temperature, as you can see from the graph. Okay. Between points Y and Z, the particles move further apart. Yes, because all of the liquid has changed into gas और gases में क्या होते हैं? Particles are further apart. Liquids में ये देखें, अगर liquids में ऐसे होते हैं, I'm just giving you an example. So gas में कैसे होंगे? It will be further apart like this. So yes, this statement is true. So which option has all three statements? It's obviously A. So I will choose option number A over here. I will mark this as correct. All right. Question number 2. Okay, again there is a temperature curve and it says that at which point does the flask contains both a solid and a liquid. अब वो कह रहे हैं कि एक सब्सटेंस को बेसिकली हीट किया गया है और ही इज गेटिंग दिस टेम्परेचर कर्व. So where will he get the both the states, that is solid and a liquid? So again, class, always remember in mind कि two states basically वहां पे होती हैं जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. Always keep this in mind. So कहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है? At B. So I will choose the option B because I can see that there is no change in temperature, whereas at A the temperature is rising and C is also rising. Okay, so option B is correct. D पे maximum है, यहाँ पे same है, constant line है. So that is why B is the right option. Okay. अच्छा, D क्यों नहीं हो सकता क्लास? अगर हम D को देखें, बिकॉज यहाँ पे एक बात मैं और आपको बता दूं, ये देखें, यहाँ पे होगा लिक्विड एंड गैस. डी पे भी कांस्टेंट है बट ओवर हियर दे विल बी लिक्विड प्लस गैस. ओवर हियर there will be solid and liquid. That is why we will select the option. Okay. Question number 3. A crystal of sodium chloride is dropped into a beaker of water and the crystal dissolves. Basically, ये 4 stages describe की गई हैं कि what happens during this process.
एज वी ऑलरेडी नो के आयनिक कंपाउंड है, वाटर में डिजोल्व होता है, तो इट्स आयनिक क्रिस्टल गेट्स ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 अगर देखें, द वाटर मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द आयंस इन द क्रिस्टल लैटिस, तो ये ऐसे होता है, यस। आयनिक बॉन्ड्स इन द क्रिस्टल ब्रेक, ओके। बट व्हाट वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू कंसिडर वेयर डिफ्यूजन इज अकरिंग, हमने इस चीज को देखना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 में देखें, तो डिफ्यूजन नहीं हो रही, बिकॉज डिफ्यूजन इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे तो इस चीज को डिफाइन नहीं किया गया, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, because this is not telling us about the diffusion. Okay, ionic bonds break in the crystal. So no, this is also not telling us about the diffusion. अब हमने ज़्यादा precise और specific हो जाना है. We only have to look for the diffusion. The ion moves randomly in all the directions uh, until they are evenly spread throughout the solution. अब ये जो throughout है ये देख लें. Throughout the solution. Throughout का क्या मतलब है? From higher concentration to lower concentration. तो बेसिकली ये इस चीज को रेफर कर रहे हैं कि व्हेन द क्रिस्टल इज ड्रॉप, तो क्रिस्टल की तो ज्यादा होगी कंसंट्रेशन, फिर वाटर में इसकी जीरो होगी, तो वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो दैट इज व्हाई दिस इज करेक्ट, ऑप्शन 3 सीम्स टू बी करेक्ट। ओके, व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? ये करेक्ट है। The ions continue to move randomly in all the directions but remain evenly spread throughout the solution. रैंडमली तो बेसिकली ये डिफ्यूजन को शो नहीं कर रहा, बट रिमेन इवनली स्प्रेड थ्रू आउट। अब इवनली तो नहीं होता कभी भी, डिफ्यूजन हमेशा होती है फ्रॉम हायर टू लो कंसंट्रेशन। अब इवनली का मतलब है कि एक जैसा होगा, एक जैसा तो स्प्रेड नहीं करता। बेसिकली दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट कमिंग अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओनली statement number 3. And which option has statement number 3? That is C. Okay, next question. In this we have to identify which process is taking place on the given letters like P, Q, R, S. Okay, अगर हम देखें गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड में P रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या प्रोसेस होगा? गैस लिक्विड में चेंज हो रही है। ओके, so what is the name of that process? It is P is basically condensation simply. I will write over here, P is representing condensation. Okay, let's look at Q. Q में क्या हो रहा है? The liquid is getting changed into solid, so Q is freezing. Okay, R. R में क्या हो रहा है? Okay, the liquid is becoming gas, so R is boiling. What about S? S में क्या हो रहा है? The solid is changing to liquid, so there is melting. Okay, so we have these answers, so we'll have to check for the options. Okay, which option has these 4 processes? In P there is condensation, yeah. In B we can see P has the condensation, Q is freezing, and R boiling, and S melting. So yes, option number B is correct. It has all these processes. This is the correct answer. Okay. Which row correctly describes the particles when a substance freezes? अब freezes में क्या होता है students? When the temperature is decreased, so it changes into solid. Solids में आपको पता है particles की arrangement कैसी होती है? एक fixed arrangement होती है like this. It is more ordered. ठीक है, एक fixed pattern होता है. This I'm talking about solids, right? Whereas the energy, what happens upon freezing? The energy is lost. Energy gain नहीं होती क्योंकि
पार्टिकल्स आपके मूव करना स्लो हो जाते हैं फ्रीजिंग में, सो दैट इज व्हाई दे विल लूज एनर्जी अपॉन freezing. Okay, so which option has these things? Particles are ordered, so we will shortlist A and B. Okay, out of A and B, the particles lose energy. Yes, it is B. They won't gain energy because ये freezing की बात हो रही है. Question number 6. Okay, this is a question of diffusion. In this, ethyleneamine basically reacts with hydrogen chloride gas and it forms ethylamine hydrochloride. Okay, ये एक रिएक्शन है बेसिकली स्टूडेंट्स, तो ये डिफ्यूजन की बेसिस पे हो रहा है. अच्छा, डिफ्यूजन किन बेसिस पे होता है? हमने ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी गैस लाइटर, कौन सी हैवियर है. ओके, so basically students, what we have to do is we have to find the MR of these gases, right? अब ये हम दोनों का एम आर फाइंड करेंगे, तो जिसका एम आर ज्यादा होगा वो हैवियर होगा, जिसका कम होगा वो लाइटर होगा. ओके, एम आर ऑफ इथाइल अमाइन गैस. अब क्लास, सिंस यू नो दैट देर आर टू कार्बन, मैं ये कार्बन लिखता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, कार्बन एटम्स, बिकॉज इसमें 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं. हम इनका एम आर फाइंड करेंगे. ओके, we'll we'll take help from the periodic table. अब इसमें कितने कार्बन हैं? देर आर 2 कार्बन. अब कार्बन का क्लास ए आर कितना होता है ये आप देखें, इट्स 12. अच्छा, बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि वो 6 लिख देते हैं. आपने 6 नहीं लिखना, आपने बेसिकली क्या करना है, यू हैव टू यूज द रिलेटिव एटॉमिक मास. आपने एटॉमिक नंबर यूज नहीं करना. बहुत स्टूडेंट ये यूज कर देते हैं. तो कार्बन का कितना है ये देख लें. मैं आपके लिए ये सर्कल भी करता हूँ, आपने ये वाला यूज करना है, 12, राइट? So I will multiply over here because there are 2 carbons, 2 multiplied by 12, and how many hydrogen are there? There are 5 plus 2, 7. 7 into हाइड्रोजन का भी हम देख लेते हैं एक दफा. 1, सिंपली 1. ये नीचे वाला आप देख लें, इट इज सिंपली 1. यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑल राइट, 1. ओके, फिर प्लस वी हैव नाइट्रोजन. हाउ मेनी नाइट्रोजन आर देयर? 1. आई विल मल्टीप्लाई बाय 1. और नाइट्रोजन का क्या होता है हम चेक कर लेते हैं, 14. Yes, so we will find the values and then add them together. 14. Okay, ये कितना हो जाएगा? 24 plus 7 plus 14. Now students, add these together, what you will get? 45. Okay, let's do it for HCl. Okay, MR of HCl. HCl में आपको पता है जैसे कि देयर इज 1 हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का हमने वहां भी चेक किया था, तो क्या है? 1 है. प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का भी चेक कर लेते हैं. क्लोरीन का क्या है? 35.5. ओके students, I'm telling you again, you have to use the relative atomic mass, not the proton number. Okay, हमने क्या करना है? 35.5. what I'm getting is 36.5. Okay, as you can see that 36.5 is lesser than 45, so the HCl is lighter as compared to the ethylamine. Ethylamine is heavier,
so HCl will diffuse faster. अब क्लास हमने ऑप्शंस को देखना है कहाँ पे ये रिएक्ट करके एक रिंग बनाएंगे ऑफ द वाइट एथिलीन हाइड्रोक्लोराइड। अगर हम डी को देखें तो डी तो नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज हैवियर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इट विल डिफ्यूज फास्टर, तो इट विल ट्रेवल मोर देन हाफ। तो बी जो है एग्जैक्टली इट इज मोर देन हाफ। तो सी नहीं हो सकता, सी और डी तो नहीं हो सकते बिकॉज these distances are less than half. D exactly the half of the tube. So it should be more than half. क्योंकि HCl lighter है, so it will travel at least more than half. So yes, A is the right answer. क्योंकि according to A, the hydrochloric acid will travel more than half of the distance. So yes, A is the correct answer. और ethylamine less distance travel करेगा क्योंकि ये हैवियर है, तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करके it will form this white compound and we'll see like the ring forming over here. Okay. Why does a balloon full of helium, this is question number 7, become smaller as the temperature changes from 30 degrees to 10 degrees? Basically cooling हो रही है. Okay. वो कह रहे हैं कि balloon small कैसे हो जाता है? The gas condenses to form a liquid and so takes up less space. अब स्टूडेंट्स लिक्विड है तो वो लिक्विड से तो जो है बलून वो स्मॉलर तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। बल्कि वो अंदर वाटर होगा तो वो स्मॉल तो नहीं होगा। ओके, तो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी, द गैस पार्टिकल्स बिकम स्मॉलर एट लोअर टेम्परेचर। दिस इज ऑल्सो स्मॉलर तो नहीं होते, गैस पार्टिकल्स उतने ही रहते हैं। ओनली द यू कुड से जो है जो काइनेटिक एनर्जी उनकी कम हो जाती है बट दे डू नॉट बिकम स्मॉलर। तो टेम्परेचर हैज टू डू विद द काइनेटिक एनर्जी, डू नॉट हैज नथिंग टू डू विद द साइज। तो साइज के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, द गैस पार्टिकल्स डिफ्यूज थ्रू द बलून। बलून के थ्रू तो नहीं कर सकते, देर इज नो होल। अब बलून में होल तो नहीं होता, सो दे कैन नॉट एस्केप। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? द गैस पार्टिकल्स डिफ्यूज थ्रू द बलून, तो ये तो गलत है। इसका मतलब आपके बलून में कोई होल है, होल होगा तो बलून में आप एयर फिल ही नहीं कर सकते। ओके, द गैस पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली सो रिड्यूसिंग द प्रेशर। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। when you are decreasing the temperature, what is happening? Basically the kinetic energy is decreasing, kinetic energy decrease होगी, they will collide less frequently। आपके जो गैस पार्टिकल्स हैं they will collide less frequently। जब ये लेस कोलाइड करेंगे तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये देखें, ये मैं आपको एक बना के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बलून है, ये गैस पार्टिकल्स हैं, तो ये जब लेस कोलाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, which row correctly shows the gas that diffuses faster and the temperature at which diffusion takes most rapidly? अब क्लास वी आर गिवन टू गैसेस। क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यू विल हैव टू लुक फॉर द लाइटेस्ट गैस। इसमें अगेन क्लास आपने क्या करना है, यू विल हैव टू फाइंड द एमआर। आपने डिसाइड कैसे करनी कि ये गैस लाइटर है या हैवियर है, ऑन द बेसिस ऑफ एमआर। और वो मैंने आपको लास्ट आई थिंक कुछ क्वेश्चंस पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे फॉर्मूला होता है CO2, दिस इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, a very famous formula or common formula, you might be knowing it। अब कार्बन का हम दोबारा पीरियोडिक टेबल से देखते हैं, डूइंग दिस प्रैक्टिस विद यू। अच्छा, कार्बन में देख लें कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, 12। ओके, 12 होता है, राइट।
12. And how many oxygen atoms are there? 2. ऑक्सीजन का भी हम एक दफा देख लेते हैं. 16. ओके. तो ये हम करेंगे, व्हाट वी विल गेट. 16. 12 plus 16 to the 32, and what we'll get 44. Okay, so we'll do for methane as well. अब मीथेन का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला CH4. दिस इज फॉर मीथेन. ओके. अब कार्बन का हमने 12 से फाइंड कर लिया था. हाइड्रोजन का हमें वैसे ही पता है 1 होता है. 1 multiplied by 4 because there are 4 hydrogen atoms. Okay, 12 plus 4. What answer will we get? 16. Okay. So as we compare both the MRs, so which gas is lighter? Yes, methane gas is lighter. So it will diffuse faster. अब हमने temperature को भी consider करना है. Now we have successfully shortlisted C and D as the correct, लेकिन हमने दोनों में से डिसाइड करना है. और डिफ्यूजन क्लास किस टेम्परेचर पे फास्टर होती है? हाई टेम्परेचर पे. So which option has these conditions? Methane and high temperature. It is C. Yes, C is the correct option. So we will select C because it is having methane and a high temperature. So under these conditions, we will have a higher diffusion, right? Okay. Which changes in pressure and temperature would result in a decrease in the volume of a fixed mass of a gas? यानी कौन सी कंडीशंस हैं जिन पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डिक्रीज हो जाए? डिक्रीजिंग द प्रेशर. ओके, लेट्स कंसिडर दिस. प्रेशर हम डिक्रीज कर रहे हैं एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. अच्छा क्लास, जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये देखें, मैं एक डायग्राम आपके लिए बनाता हूँ. ये देखें, प्रेशर आपको पता है क्या होता है. ये हमारे पास एक पिस्टन है. ओके, इसके अंदर गैस है. बट व्हेन आई कंप्रेस इट, व्हाट विल हैपन? These particles will become closer together, so their volume will decrease. So I am basically increasing the pressure and decreasing the volume. तो क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज करता है. तो हम प्रेशर को इंक्रीज ही करेंगे. वो किस में ऑप्शन है? सी और डी में. ओके. दूसरा किस हम डिक्रीज कर सकते हैं? वॉल्यूम बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो वो किस में? टेम्परेचर जब स्टूडेंट्स कम होगा तो दे विल कोलाइड लेस फ्रीक्वेंटली, दे विल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी. जब वो कम उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो कोलाइड कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे. ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ये सही आंसर है. ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके इनके फॉर्मूलाज भी गिवन है. एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर बोथ गैसेस एट टेम्परेचर्स अबव -50. ऑल राइट. अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है बेसिकली? अगेन हमने इसके लिए वही एक्सरसाइज है. फर्स्ट वी विल फाइंड द एमआरस. हाइड्रोजन क्लोराइड का भी देख लेते हैं और इसका भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. ऑल राइट. नाउ अगेन हाइड्रोजन का जैसे पता है, आप सबको पता है कि इसका क्या होता है. इसका होता है 1. ओके. इसका होता है 1. और क्लोरीन का भी दोबारा देख लेते हैं. इसका होता है 35.5. यस, 35.5. लेट्स ऐड देम टुगेदर. 36.5. अच्छा, हाइड्रोजन का गेन 1 है.
but there are two hydrogens, so we will multiply it by 1 and we will add the relative atomic mass of sulfur. चेक करते हैं कितना होता है. सल्फर का होता है 32, ये देख सकते हैं आप. ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं 32. Let's add them together. 2 plus 32. What will we get? 34. Okay. So which one is lighter? Definitely, it is hydrogen sulfide. So hydrogen sulfide is lesser in MR, so it is lighter. It will diffuse faster. So temperature class, temperature हम decide करना है. Basically, तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, -40 कि -20? जो वैल्यू माइनस में जितनी कम होगी वो हायर होगी, तो -20 इज द आंसर. -20 हायर है एज कम्पेयर टू -40. अब आपने स्टूडेंट्स ये मिस्टेक नहीं करनी, ये तो एक सिंपल मैथ है, अलजेब्रा है, कि माइनस में जो नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतना कम होगा, और जो जितना नंबर मतलब कम होता जाएगा वो हायर होता जाएगा. तो यस, -20 इज द आंसर. तो आई विल सिलेक्ट ऑप्शन नंबर डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. ओके, विच स्टेटमेंट अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर इज करेक्ट? हम इन सब स्टेटमेंट्स को देखते हैं. व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस इट बिकम्स अ सॉलिड एंड एनर्जी इज रिलीज. रिलीज का मतलब है लॉस. Yes, this statement is correct, but we also have to look the other statements as well. When a liquid reaches its boiling point, it becomes a gas. Yes, this is true. This process is called evaporation. No, this is boiling. Evaporation the boiling point से less temperature पे होती है. So this is incorrect. Okay. When a solid changes directly to a gas, the process is called condensation. No, it is called sublimation. ये गलत है. When a solid melts, the particles get further apart and have less energy. No, जब solid melt हो चुका होता है तो वो टेम्परेचर उसका गेन राइज हो रहा होता है. हम टेम्परेचर कर्व देखें तो पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा होती है. दे आर इन हाई मोशन. तो दिस इज इनकरेक्ट. तो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. फॉर योर ओन कन्वीनियंस आई कैन शो यू द ग्राफ अगेन. क्वेश्चन 1 मैंने आपको कराया था, ये देखें. इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, ग्राफ ऊपर को ही जाता है ऐसे, नीचे को नहीं जाता है ऐसे. दैट वाज अ सिमिलर ग्राफ. ओके. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देयर इज अ डिवाइस इन द लेबोरेटरी और वो क्या कर रही है, गैस डिटेक्ट कर रही है, द gases that are being produced. So basically, two gases are being produced. One is SF6 and the other is CO2, that is carbon dioxide. अब वो कह रहे हैं कि कौन सी गैस ज़्यादा टाइम लेगी डिटेक्ट होने में. विच टाइम विल हैव द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिंग टाइम. अब जितना आपका डिफ्यूजन का रेट स्लो होगा उतना डिटेक्टिंग टाइम भी आपका ग्रेटेस्ट होगा. अब डिफ्यूजन को आपको पता है कि इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. वन इज the higher the MR, the slowest it will be. हमने हायर को अब देखना है, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगी. हमने क्योंकि इस चीज को कंसिडर करना है, ये जो क्वेश्चन में गिवन है. ओके, SF6, हम इसका MR फाइंड करते हैं, रिलेटिव मोलेकुलर मास. जैसे कि प्रोडक्ट टेबल से भी आप देख सकते हैं. इट हैज AR ऑफ relative atomic mass of 32. मैं सल्फर की बात कर रहा हूँ. ओके. एंड फ्लोरीन, for fluorine it is 19, since there are 6 fluorine atoms, so I will simply multiply 6 with 19 and let's check what answer will I get. So I will get 146. Okay.
कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का होता है 12 AR, और there are two oxygen, so I will simply multiply by 16 with 2, and let's check what answer will I get. 12 plus 32, and I will be getting 44. So which one is heavier? Obviously SF6, and the greatest time will take place at a lower temperature, which is 20. So 20 degrees or SF6. Yes, for this, the A option is correct. It will take the greatest detection time due to a slower diffusion rate. So yes, this is the answer. कम टेम्परेचर पे डिफ्यूजन भी स्लो होगी फिर. Okay. Question number 13. Which gas will diffuse at the fastest rate at the same temperature and pressure? इसमें again students वही MR की बात हो रही है. तो argon का basically क्या होता है AR? It is 40. You can check it from the periodic table. Okay. The next compound is C3H8. अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे? कार्बन का होता है 12. आई विल सिंपली मल्टीप्लाई 3 विद 12, एंड देर आर 8 हाइड्रोजन. तो 8 हाइड्रोजन है, और इसका हाइड्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक वेट 1 होता है. लेट्स टोटल देम. 36 प्लस 8, what will I get? 44. Okay. Let's do with the other compound CO2. CO2 का तो हमने already earlier हमने find out कर लिया हुआ है, so it is 44. I won't do it again. Okay, F2, fluorine. Fluorine का कितना है students? It is there are two atoms of fluorine, right? So I will simply multiply by 2 into 19. Okay. तो क्या मुझे आंसर मिलेगा? I will be getting 38. I will do. I will show you the total over here. Wait a second. Okay, 38. तो अगर हम कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो किसका सबसे कम MR है? इसका 40 था, ये मैं लिखना भूल गया. हाँ, इसका 38 है जी. अ, जो C3H8 है, इसका कितना है हमारे पास? 44. इसका इसका भी 44 है सरप्राइजिंगली, और इसका है 38. तो किसका कम है? ये फ्लोरीन का. यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. Then we have which condition will give the highest rate of diffusion. Obviously molecular mass आपका जितना smaller होगा, और temperature जितना high होगा, तो ये कौन सी options में है? ये C है. So students, C is the correct option, as we can see, because smaller the mass and more it will diffuse, और temperature जितना high होगा, तो ये favor करेंगी rate of diffusion को. Okay. ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम ऑफ द सेम पैटर्न. ओके. इसमें वो क्या कह रहे हैं कि विच गैस डिफ्यूजेस एट द फास्टेस्ट रेट. तो हाउ विल वी नो? अगेन वी लुक फॉर द MR. जो लाइटर गैस होगी वो ज़्यादा फास्ट करेगी. नाइट्रोजन का फॉर्मूला आप सबको पता है, इट इज N2, and the AR of one nitrogen atom is 14. Since there are two nitrogen atoms, I will multiply by 2. I will get 28. So 28 is the MR of nitrogen gas, and for the oxygen it is O2. ऑक्सीजन की भी दो एटम्स हैं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. इसका 16 होता है एक ऑक्सीजन एटम का जो AR है, तो ये 32 है. तो नाइट्रोजन इज लाइटर देन ऑक्सीजन. और किन कंडीशन पे फास्टेस्ट होगी? हाई टेम्परेचर पे. अब हम नाइट्रोजन को तो शॉर्ट लिस्ट कर लिया, लेकिन हमने टेम्परेचर को भी करना है. तो नाइट्रोजन with 50 degrees. So this will diffuse the fastest. So students, these were all the questions of the states of matter. I hope all of you have understand this concept quite well.
and understood the questions. So for any queries, you can contact me. You are feel free to ask any question. Okay. Allah Hafiz. Bye. Take care.